Hello guys, this video we are going to talk about the Peninsular Plateau. As we know that the Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline igneous rocks and also metamorphic rocks. In the earlier video we talked about till the northern plains which was situated from Punjab, then this some parts of Rajasthan, then Haryana, Delhi, UP, Bihar, then this part Bengal and also Assam. Now we will talk about the Peninsular Plateau, which is the south of this northern plains. Remember, Narmada River rises from the Amarkantak Plateau and it flows towards the west, towards Gulf of Khambar. And below the Narmada River, this portion, which you usually see as a triangle, inverted triangle, this portion is known as Peninsular Plateau. Remember, this Peninsular Plateau was formed when flood basalt volcano erupted for millions of years ago. When we talked about the Gondwana land getting separated, uh, we already talked about the Gondwana land which got separated from the Australian part, that Gondwana land structure. It got separated, and millions of years ago it went upward into the north direction and collided with the Eurasian plate, and our India, the map of India which you are seeing, which you are viewing, is formed. So remember, from that particular flood basalt volcanoes for millions of years, lava flowed, and the lava, when solidified and cooled, it formed this part, the Deccan part. Basically, this Deccan trap, the Peninsular Plateau, is composed of igneous metamorphic rocks which was formed from the lava. Apart from this, rising from the height of 150 meter above the river plains to an elevation of 600 to 900 meter is the irregular triangle which we know as the Peninsular Plateau. अब थोड़ा सा और देखते हैं कि कैसे Peninsular Plateau के other map features हैं. For example, when we go here and see this plateau uh, is somewhat resembles the triangular figure. But when you see that the plateau has broad and shallow valleys and also rounded hills, the plateau consists of two broad divisions. Basically, इस plateau में आपको दो broad divisions दिखेंगे on the basis of relief features. You can call uh, three important relief features, three important divisions on the basis of prominent relief features. The first one is Deccan Plateau, the second one is Central Highlands, and the third one is Northeastern Plateau. So first look them one by one. The first Deccan Plateau. When we talk about Deccan Plateau, this is bordered by Western Ghats. You know that the Western Ghats flows along uh, around Tapti River, south of the Tapti River towards the Kanyakumari. This is a long mountain range, and this is particularly the Western Ghat we are talking about is having a lot of passes in between, which is not so regular. But uh, for example, the pass is present here at Nasik. Uh, the pass is also present at the Mumbai, then Kerala, and at the different places, which is known as ghats, Thal Ghat, Bhor Ghat, and Pal Ghat. Apart from that, the Deccan Plateau, which we are talking about, that is bordered by the Western Ghats in the west, Eastern Ghats in the east. Eastern Ghats flows from the river Mahanadi towards the Andhra Pradesh and then finally towards the Nilgiri hills of Tamil Nadu. So Eastern Ghats are locally known by different names such as Sahyadri in the Maharashtra, this region which we talked about, Sahyadri, the Western Ghats. So यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पहले हम डेक्कन प्लेटो की बात कर रहे हैं जिसके वेस्ट में हमारा वेस्टर्न घाट है और जिसके ईस्ट में हमारा ईस्टर्न घाट्स है. दोनों के बीच में थोड़े डिफरेंसेस है.
यहाँ पे पासेस आपको दिखेंगे, बीच बीच में जो रेंजेस है दे आर हैविंग सम पासेस टू इंटर। और उनसे क्या होती है कि जब हम मानसून की बात करते हैं तो जो मानसून विंड्स आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इंडिया में, अरेबियन सी ब्रांच जो मैंने आपको बताया था पहले, वो इन पासेस से इंटर कर जाते हैं और इस रीजन में काफ़ी रेनफॉल करवाते हैं। द रेनफॉल इन दिस रीजन इज वेरी हाई because these mountain ranges, the Western Ghats, is having some breakaways into them that is known as pass, such as Thal Ghat in the Mumbai, then the Bhor Ghat in the Pune, and the Pal Ghat in the Kerala region. कर्नाटक के रीजन में ज़्यादा पासेस है नहीं, इसलिए कर्नाटक वाला जो थोड़ा रीजन है इस साइड वाला, वहाँ पे वर्षा कम होती है। एक चीज़ और, जब ये मानसून विंड्स इंटर करते हैं वेस्टर्न घाट्स में, तो जो माउंटेन होता है तो उस पर ऐसे क्लाइंब करते हैं मानसून विंड्स। जब ये क्लाइंब करते हैं तो इनमें मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर होता है, ये ऊपर जाते जाते पहाड़ के टॉप पे जाते जाते थोड़ा मॉइस्चर को सेड कर देते हैं और यहाँ पे हो जाती है वर्षा। तो ये वाला जो रीजन है, वहाँ पे वर्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये विंड्स यहाँ से चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हैं और यहाँ पे वर्षा करवा देते हैं इस पॉइंट पे, तो फिर ये नीचे भी जाते हैं और नीचे जाते जाते ये फिर वापस गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं, जिसके कारण ये वाला जो रीजन है लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। यहाँ पे वर्षा होती है इस साइड वाले रीजन। तो इसको हम ओडोग्राफिक इफेक्ट बोलते हैं ऑफ रेनफॉल, जो कि आगे हम मानसून, इंडियन मानसून में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये टॉपिक्स इतना ज़्यादा क्लब्ड है ना कि आपको अलग से ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जा सकती, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे एनसीईआरटी में आपका चैप्टर्स दिया हुआ है उस बेसिस पे मैं आपको कवर करूँ, तो जैसे जैसे जो टर्म्स आते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊँगा। तो अभी आपने देख लिया कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स में अंतर क्या है। वेस्टर्न घाट्स में आपका ब्रेक्स है, पासेज है, जिसके कारण विंड्स अंदर आ जाती है, मानसून विंड्स, और वर्षा कराती है। बल्कि जो ईस्टर्न घाट है वो काफ़ी कंटिन्यूस रेंज है, महानदी से ये जो आपका नीलगिरी तक, इसमें कोई ब्रेक्स है नहीं ज़्यादा, तो यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। एक रीज़न और है यहाँ पे रेनफॉल कम होने की, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे आते हैं, दो ब्रांच में आते हैं, यहाँ से आते हैं, तो एक ब्रांच तो अरेबियन सी की तरफ चला जाता है और एक ब्रांच आपका बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। तो ये बे ऑफ बंगाल के जो ब्रांच होते हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं ईस्टर्न घाट के। ये वेस्टर्न घाट है अपना, और वेस्टर्न घाट पे आप देखोगे तो ये उसके पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट थोड़े परपेंडिकुलर है, तिरछे परपेंडिकुलर है। पर when you look upon the eastern ghat, you see that the monsoon winds, southwest monsoon winds, are parallel to this eastern ghat. So they don't much enter into this region, and they directly collide with the Arakan Yoma of the Myanmar, and then they are deflected into the Indian landmass। और फिर यहाँ पे ये पूरे रीजन में वर्षा होती है, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में। तो अभी फिलहाल हम वापस आते हैं डेक्कन प्लेटू वाले पार्ट पे। ये मानसून का पार्ट मैं आपको बताने लगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट था। नाउ वी मूव टुवर्ड्स वेस्टर्न घाट, जो मैंने आपको बताया कि ये वाले रीजन पे डेक्कन प्लेटू है, वेस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न घाट। और फिर आपका इसमें माइकाल रेंज है और महादेव हिल्स है नॉर्थ में। ये तो चलो वेस्ट में हो गया, ये ईस्ट में हो गया। अब जब हम नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में माइकाल रेंजेस। माइकाल रेंजेस कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी के पास यहाँ पे माइकाल है, सॉरी यहाँ पे महादेव रेंजेस है और ये माइकाल रेंजेस है। देन when we move towards the highest peak of the peninsular plateau, then it is the Annamalai hills of the western घाट। तो वेस्टर्न घाट को हम किस और नाम से भी जानते हैं, शायदरी hills in the Maharashtra, Annamalai hills and Cardamom hills in the Kerala, and actually the Western Ghats are comparatively higher in elevation and more continuous than the Eastern Ghats। ये मैंने आपको already बता दिया।
उसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक जो अनाईमुडी है, जिसकी जो हाइट है 2695। अनाईमुडी वेस्टर्न घाट 2695। और ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है आपकी महेंद्रगिरी एंड महेंद्रगिरी पर्वत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज चेक, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट ईस्टर्न घाट की जो पीक है उसकी जो लेंथ है वो आपकी वेस्टर्न घाट के पीक से कम है। ये फॉर रीज़न आपको याद रखना पड़ेगा, वेस्टर्न घाट में जो पिक्स हैं वो लेंदी है, ईस्टर्न घाट में जो पिक हैं वो थोड़े से लेंदी नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट के पिक्स हैं वो वाइडर है, और जो वेस्टर्न घाट्स के पिक हैं वो लेस वाइडर है देन द ईस्टर्न घाट्स। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, बेसिक्स। नाउ व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न घाट, जैसे मैंने आपको वेस्टर्न घाट में बताया कि यहाँ पे इसे साइगरी बोलते हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में, यहाँ पे इसे अन्नामलाई बोलते हैं नीलगिरी और केरल वाले रीजन में, कार्डमम हिल्स भी बोलते हैं तमिलनाडु वाले रीजन में। आंध्र प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स को? एनी गेसेस? एक्चुअली आंध्र प्रदेश में इसे हम पलाकोंडा रेंज, नल्लामल्ला हिल्स और महेंद्रगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पर आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मर्ज करता है, जिसे हम नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट हुआ वो आपका डेक्कन प्लेटू का पार्ट। अब जब हम डेक्कन प्लेटू से आगे बढ़ेंगे तो हमारा पार्ट आएगा सेंट्रल हाईलैंड्स का। सेंट्रल हाईलैंड्स आपका बाउंडेड बाई अरावली रेंजेस। आपको पता होगा कि अरावली रेंजेस जो है वो यहाँ पे राजस्थान और दिल्ली के आसपास, थोड़ा सा मैंने इसे बना दिया, ये वाला रेंज जो है आपका अरावली है, दिल्ली तक जाता है, राजस्थान में मोस्टली इसके पार्ट पड़ते हैं। तो ये सेंट्रल हाईलैंड है वो बाउंडेड है अरावली रेंज से, सतपुरा रेंज से। और आपका सतपुरा रेंज कहाँ पे है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि नर्मदा रिवर यहाँ पे है, तो नर्मदा नर्मदा के साउथ में आपका सतपुरा रेंजेस है और नॉर्थ में विंध्या रेंजेस है। तो अगर हम बात करें, अभी जो मैंने आपको बताया दो डिवीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर्स, मैं आपको बता रहा हूँ पेनिनसुलर प्लेटू का। एक तो हो गया डेक्कन प्लेटू, जिसमें वेस्टर्न घाट आ गया था, ईस्टर्न घाट आ गया था, दोनों मर्ज कर गया था नीलगिरी हिल्स पे। उसके बाद इसके नॉर्थ में मैंने आपको बताया था कि महादेव हिल्स था और मैकाल हिल्स था। ये तो डेक्कन प्लेटू का स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं ऊपर की ओर बढ़ूंगा तो अरावली हिल्स है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड का स्ट्रक्चर, और इसके साउथ में सतपुरा रेंजेस है, जो कि ऑलमोस्ट यहीं पर है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया वो हो गया हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा डेक्कन प्लेटू। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू है, वो है यहाँ पे मेघालय, शिलोंग। एक्चुअली ये पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, जो बाद में जाके अलग हो गया एक गैप से। यहाँ पे गैप होता है जिसे हम माल्टा गैप बोलते हैं। और पहले ये जो पार्ट था वो इसी का पार्ट था, पेनिनसुलर प्लेटू का ट्रायंगुलर इन्वर्टेड ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो। लेकिन आज के इंडिया में ये पार्ट खिसक कर इस नॉर्थ ईस्टर्न साइड में चला गया, जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी बोलते हैं। इसका कुछ पार्ट मेघालय में है और कुछ पार्ट कार्बी एंगलोंग आसाम में। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, तीनों चीज़ क्लियर कर दी कि तीन पार्ट्स हैं, तीन डिविजन्स हैं पेनिनसुलर प्लेटू के, याद रखिएगा। पहला जो डिवीज़न है वो है आपका डेक्कन प्लेटू। सेकेंड जो डिवीज़न है वो है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, और थर्ड जो डिवीज़न है वो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो इसमें डेक्कन प्लेटू की तो हमने बात कर ली, जिसमें हमने वेस्टर्न घाट की बात की, ईस्टर्न घाट की बात की, महादेव हिल्स की बात की, मैकाल हिल्स की बात की। अब हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अरावली रेंजेस उसके वेस्टर्न साइड में है, उसके साउथ साइड में सतपुरा रेंजेस हैं। एक्चुअली ये जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री है ना डेक्कन प्लेटू का, वही सदर्न मोस्ट बाउंड्री है सेंट्रल हाईलैंड्स का, वैसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हमें एक फीचर्स
सेंट्रल हाइलैंड्स का याद रखना है कि अरावली रेंजेस में जैसलमेर तक ये चला जाता है, और जैसलमेर में जो बर्चन्स होते हैं, क्रिजेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं बर्चन्स, वो मिलता है। ये इसका एक फीचर, बर्चन्स। अभी आप जैसलमेर गए होगे तो आपको ये टर्म्स से आप वाकिफ होंगे, आपको दिखा होगा क्रिजेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं। और यहाँ पे आपको इस रीजन में ही आपको काफ़ी मेटामॉर्फिक रॉक्स मिलेंगे, जैसे मार्बल, स्लेट, ये सब जो रॉक्स हैं वो आपको इस रीजन में मिल जाएंगे। द नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट थिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड इज 700 to 1000 मीटर above the mean sea level, or most of the tributaries of river Yamuna have their origin in the Vindhya and Kaimur ranges towards the north and northeastern direction. अभी यहाँ पे एक पॉइंट है कि ये अरावली अरावली हिल्स है, सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट। यहाँ पे सतपुरा रेंजेस है, यहाँ पे विंध्या रेंजेस है, और इसके अलावा कैमूर रेंज भी है जो कि मध्य प्रदेश से बिहार तक जाता है। उसके अलावा जो हम देखेंगे, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है यमुना की जो रिवर्स है वो हमें इसी जोन में दिखेगी, जो कि ट्रिब्यूटरीज है यमुना की, और ये विंध्या और कैमूर रेंजेस में फ्लो करती है। सिर्फ एक बानस नदी है जो सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की, जो चंबल रिवर भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और बानस जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है जो कि अरावली इन द वेस्ट से ओरिजिनेट करती है। बाकी सभी रिवर जो है वो आपको विंध्या और कैमूर रेंजेस से ओरिजिनेट करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की हमने बात कर ली, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेटू है। It is believed that due to the force exerted by the north eastward movement of the Indian plate at the time of Himalayan origin, जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था उस वक्त ही जो फोर्स एक्सर्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, मतलब इस साइड में हमारा प्लेट मूव कर रहा था, और उससे जो फोर्स एक्सर्ट हुआ उसके कारण ये वाला पार्ट अलग हुआ जिसे हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू बोलते हैं। Later this depression got filled by the deposition activity of numerous rivers. Today this Meghalaya and Karbi Anglong plateau stand detached from the main peninsular block. ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, उससे ये वाला प्लेटू हमें डिटैच दिखता है, और एक ह्यूज फॉल्ट भी क्रिएट हुआ था बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू। जब हम बात करेंगे तो राजमहल हिल्स और मेघालय प्लेटू हमारा यहाँ पे है, राजमहल हिल्स हमारा बिहार में है, तो इसके बीच में जो फॉल्ट क्रिएट हुआ था यहाँ पे उसके कारण ये सेपरेट हुआ। मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3, गैरो, खासी एंड जैंतिया। ये आपको पता होगा, मेघालय का स्ट्रक्चर मान लो, ऐसे मान लो, तो यहाँ पे गैरो हिल्स है, यहाँ पे खासी हिल्स है, और यहाँ पे जैंतिया हिल्स है। नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स, ये पर्टिकुलर ट्राइबल्स हैं जो कि मेघालय में मिलते हैं, उनके नाम पे ही ये हिल्स का नामकरण किया हुआ है। द मेघालय प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, और इसके कुछ पार्ट्स जो है एक्सटेंशन के, उनमें कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम का वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक स्पेशल बात इस रीजन की नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की यह है कि ये रिच सोर्स है मिनरल्स का। रिच सोर्स है मिनरल्स का मीन्स यहाँ पे कोल, यहाँ पे आपका आयरन, यहाँ पे आपका लाइमस्टोन, यहाँ पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिलता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की, जब हम वेस्टर्न घाट की बात कर रहे थे और डेक्कन प्लेटू जो फर्स्ट डिवीजन थी उसकी बात कर रहे थे, और ईस्टर्न घाट की, तब हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट में रेनफॉल ज़्यादा होता था ऑन दिस साइड, ऑन द लीवर्ड साइड नहीं होता था। जब हमने ईस्टर्न घाट की बात की तो देखा कि यहाँ से पैरेलल ब्रांच एरेकोनियमा पे टकराता है, जिसके कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती ज़्यादा। मानसून पीरियड में जून से लेकर अक्टूबर का जो पीरियड है उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओरोग्राफिक इफेक्ट के कारण बारिश होती है, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है ड्यू टू पैरेलल ब्रांच ऑफ मानसून विंड फ्लोइंग टूवर्ड्स अलोंग विद द ईस्टर्न घाट। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में बारिश होती है। यस, दिस एरिया रिसीव्स वेरी मच हाईएस्ट रेनफॉल, और वन ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जाके एरेकन से टकराती है, उसके डिफ्लेक्ट होती है, और इस रीजन में विंड्स जो है वो काफ़ी मैक्सिमम रेनफॉल करवाती है। फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून वी गेट द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया।
यहाँ पे एक जगह है चेरापूंजी विच गेट्स, वहाँ पे चेरापूंजी में एक जगह है मैसूराम विलेज, दैट इज द मोस्ट वेटेस्ट प्लेस इन द इंडिया इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल प्रेसिपिटेशन। तो अभी तक हमने तीन डिविजन्स की बात कर ली पेनिनसुलर प्लेटू की, जिसमें हमने डेक्कन प्लेटू देखा, सेंट्रल हाईलैंड्स देखा और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू देखा। अब कुछ और बात करते हैं। जैसे पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो अंडरगोन किया है रिकरेंट फेजेस में अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस accompanied बाय क्रस्टल फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चर्स, जिसके कारण यहाँ पे northwestern part of the plateau has complex relief of ravines and gorges. The ravines of Chambal, Bhind and Morena are some of the well-known examples. ये वाला जो रीजन है उसकी हम बात करें, ये आपकी चंबल रिवर जो है, और आपका ये जो मोरेना डिस्ट्रिक्ट है, ये जो आपका भिंड डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, उसकी बात करें, यहाँ पे काफ़ी रेवाइंस क्रिएट हुए, रेवाइंस क्रिएट हुए हैं इन द टर्म्स ऑफ ये जो फॉल्ट क्रिएट हुआ है उसके कारण, स्पेशियल वेरिएशंस हुआ है उसके कारण। नाउ वी विल टॉक अबाउट द विंध्यन रेंज। कुछ जो चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ मैं जल्दी से कवर कर देता हूँ ताकि इजी हो आपको। लेट्स सी, जो विंध्यन रेंजेस है, द विंध्यन रेंजेस इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑफ द साउथ। मैंने आपको बताया था नर्मदा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है, वही चीज़ यहाँ पे बताया है। और द फर्दर मोर वेस्टवर्ड एक्सटेंस ग्रेजुअली मर्जेज विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। और यहाँ पे आप जाओगे इस रेंजेस के तो डेजर्ट वाला जो एरिया है, रॉकी डेजर्ट्स, उसकी बात कर रहे हैं। द सेंट्रल the flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, Sindh and Betwa and the Keen, is from south west to north east. Obviously साउथ वेस्ट वाला जो डायरेक्शन है उससे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि जब इधर से ऐसे जा रहा है तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और इससे आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके अलावा द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये तो आपको दिख रहा है यहाँ कि ये जो है आपका सेंट्रल हाईलैंड्स वो वाइडर है वेस्ट में, लेकिन जैसे जैसे इस साइड आ रहा है ईस्ट में तो वो नैरोअर हो रहा है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आपके दो इम्पॉर्टेंट प्लेटू हैं, वो कौन से हैं? तो ये वाला जो रीजन है वो, और ये वाला जो रीजन है वो, इसे हम बोलते हैं बुंदेलखंड, इसे हम बोलते हैं बागेलखंड। ये दोनों प्लेटू रीजन है। और इसके भी ईस्ट में आ जाओगे तो छोटा नागपुर प्लेटू आपको यहाँ पे दिखेगा, जिसका पार्ट, छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट आपका झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मिलेगा। बाघेलखंड जो है वो मोस्टली आपका मध्य प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे है। और जो बुंदेलखंड है वो भी आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। ये प्लेटू है, पठार है, जहाँ पे रेनफॉल्स बुंदेलखंड वाले एरिया में कम होती है। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास। ये तो हमने देख लिया था, जहाँ पे महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंजेस, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हमने देखा था सेंट्रल हाईलैंड का। तो सेंट्रल हाईलैंड का यहाँ भी अरावली रेंजेस पे था, फिर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आपका ये बुंदेलखंड, बागेलखंड और ये छोटा नागपुर प्लेटू हो जाता है। साउथ में इसके सतपुरा रेंजेस हो जाते हैं। ये बात देख लिया था हमने। फिर हमने इसका एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू भी देखा था, जो लिखा हुआ है दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जो थर्ड डिवीजन में हमने बात की थी। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे हमने पासेज आपको बताए थे, थाल, भोर एंड पाल घाट। थाल जो है वो आपका मुंबई टू नासिक कनेक्ट करता है। भोर घाट जो है वो आपका मुंबई टू पुणे कनेक्ट करता है। और जो पाल घाट है वो कोची टू चेन्नई कनेक्ट करता है, जो कि केरल में। The western Ghat are higher than the eastern Ghat, and their average elevation is 900 to 600 meters as against 600 मीटर of the eastern Ghat। ये सब बात हमने ऑलरेडी कर ली। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत में उस समय गाइड था, जो कि हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, और अनाई मुड़ी जो है वो ईस्टर्न घाट का। नेक्स्ट, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया। ये जो पूरा का पूरा रीजन है वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है, और ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर के लिए, खासकर कॉटन क्रॉप के लिए, जो कि
बहुत ही ज़्यादा इसमें ग्रो किया जाता है क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये सोयल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अरेवली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। ये भी बता दिया मैंने आपको, ईस्टवर्ड साउथ वेस्ट गुजरात टू दिल्ली एक्सटेंड। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ब्लैक सॉइल वाला रीज़न है उसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेक्कन प्लेटू, क्योंकि ये फ्लड बसाल्ट वोल्केनो से बना है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा मिलता है और ब्लैक सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर को होल्ड कर सकता है, रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे कॉटन ज़्यादा ग्रो होता है, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर। थैंक यू।